Good morning, students. Okay, earlier we had started with this chapter, that is the enemy, and in this chapter we had seen that it is basically the story about uh, two doctors. One is Hannah and Sadav, and basically they both are Japanese, and uh, Dr. Sadav is a doctor come scientist also. See, the initial story, just to revise, wind up the earlier thing. Dr. Sadao is house is on a very narrow beach on a Japanese coast, and where he spent his childhood days. And Dr. Sadao's father, he was a traditional Japanese person and believed in a Japanese tradition and culture, and but his thinking was very great, that the education is the most important thing, and he did everything to provide good education to Sadav. And in fact, Sadav also knew that his father's basic concern was about education, and for that he studied very hard. And in fact, before this Dr. Sadav's father died, he became a doctor come scientist. Basically, here I would like to clarify that he was a doctor, very good, extraordinary good doctor. Besides this doctor, he was also a very good scientist, because he was working on a particular project where would the this wounds, लाइक जब हम इंजर्ड हो जाते हैं तो हमारे वुंड का जो निशान रह जाते हैं, दैट दिस वुंड, द साइन ऑफ द वुंड will not be there. He was on such a particular working on that theory, and he was also successful. And now once one evening, Dr. Sadao just was standing there on his balcony, just watching towards the sea in the evening. He knew that by the time this the sea by after a little while everything will be under the mist, because for last 2 days the weather has changed. The hot winds from the sea were covering the seashore. In this seashore near Dr. Sadav's house, there were fishermen's village was there, about like you can say 2 kilometer either side. This was a very narrow beach. Further in the beach there were spike rocks, so it was not easy to anybody to come to the shore without being getting injured. And now he was just thinking about Hannah, his wife, whom he had met in America at a professor's house. When they were these were the foreign students, and the professor and his wife were very curious, and they took care of these students, and they called them at their home, and they entertained them, they fed them, and also they like to share the culture knowledge about their country and with these students. Dr. Sadav did not like to go to professor's house, because it was not so clean. Beside this, professor's wife was also voluminous, यानी बहुत ही बोलती थी, और मगर फिर भी वो चले जाते थे, बिकॉज वो अच्छा लगता था, कभी कभी अच्छा लगता था. और उस दिन भी एक वाक़या हुआ, वो नहीं जाने वाले थे, मगर जब गए फिर भी ऐसे चले गए. ऑलमोस्ट ही हैज़ डिसाइडेड नॉट टू गो, बट देन ही decided against it, and he went to professor's house, and there he saw this new girl, and that was Hannah, and she was looking Japanese, but he waited to fall in love until he was confirmed that she was Japanese, and besides being Japanese, she should be pure in race. This was the instruction. Actually, the thinking of Sadav's father, that
the girl who would be Dr. Sadau's wife should be pure in race. She should, besides being Japanese, she should be pure in race. Pure in race मैंने पहले भी समझाया था कि यानी मदर फादर दोनों ही जापनीज होने चाहिए. And then they fell in love, but they decided everything, but they waited for the approval from the father. They completed their education there, and they came to Japan, and after the approval of Dr. Sadau's father, Dr. Sadao married to Hannah in a very traditional Japanese way. And when he was just thinking this, Hannah also came on the terrace, and she stood beside Dr. Sadao, and this was the initial story. And then they were just watching and mist started. They knew that after a little while उनको नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी जो शोर है वहाँ पे मिस्ट हो जाएगी, यानी धुंध हो जाएगी, and foggy condition. And just when they were looking at the shore, at that very moment they saw a shadow coming out of the mist. ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी या कोई है जो वहाँ से शायद बाहर आ रहा है मिस्ट से. एंड ही थॉट दैट देयर माइट बी समबडी कमिंग फ्रॉम देयर. और थोड़ी ही देर में उन्होंने ध्यान से देखा दैट दैट शैडो crawled for a little while, then it fell down. और थोड़ा और आगे बढ़ा, लड़खड़ाया और वो गिर गया. और ये दोनों ही Sadao and Hannah, they ran to the shore, and when they reached the shore, they found that there was a blood oozing out of the one side. The sand has become red. When they saw this, Dr. Sadao knew that he is an injured person, and there was a wound at the lower back of the student, person's. There was a wound at the back, and when he examined the wound carefully, he found that it was a actual bullet wound, because there was a gunpowder just on the border of that wound, and he knew that he might have been the prisoner of war, because he might be running from there and he might be shot. And this wound was little older, and due to the spikes, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जो शोर था, शोर के आगे स्पाइक रॉक्स थे. स्पाइक यानी नुकीले जो पत्थर होते वो, और इसी वजह से वो वो जो वुंड था, वो कोई पत्थर उस वुंड पे लग गया और वो वापस खुल गया. एंड blood started oozing out of that that wound. And this thing he noticed, and now he wanted to know. They just turned him overside, और जैसे ही उसको टर्न किया, उसका चेहरा देखा तो थोड़ी दाढ़ी थी. ही वॉज ब्लॉन्ड, यानी फेयर कलर का था और बहुत ही फेयर था. एंड ही वॉज ए वाइट मैन, नॉट ए जापनीज. तो ये समझ गए कि ये कोई आर्मी का या किसी ऐसा पर्सन है. And then when they saw the cap, they removed the cap and washed, and they saw that there was embossed US Navy sailor on it, and they understood that he was an American soldier who had escaped from the jail, and while escaping he was shot by a bullet. And so now Dr. Sadao was a very patriotic person. All Americans were his enemies, because Japan and America were at war. And so now Hannah and Sadao had to decide what to do with this person, whether to hand it over to the police, or whether to take it home, or whether to do any other option. So they thought, if they hand it over to the police, they will definitely they will kill him. Or and second option, to take it home, it was a very
critical because they were patriotic. Besides this patriotic, this America and Japan was at war, and sheltering a prisoner or the enemy was not a good sign, and they may fall in trouble. And so this option was also not the. Now the last and the best option was to throw him back into the sea, and uh, Hannah and Sadao decided that the best option would be throw him back into the sea, because then there will be nothing, not a person to be told to that something have happened. So Dr. Sadao told Hannah to lift him and throw him back, but Hannah refused. No, I cannot throw him back into the uh, this sea. So now you see this, they were in a dilemma whether to how to throw him back into the sea, and for that reason they were discussing on this matter. Uh, okay, how to throw him back into the sea. The kindest thing would be put to him back into the sea, the Hannah said, but neither of them. ये दोनों ही बातें कर रहे हैं मगर कोई मूव नहीं कर रहा कि उठा के उसको फेंक दे. Then what is he? There is something about him. He looks American. और वो तो हमने देख लिया. And now doctor hesitated. The strange thing is, अब डॉक्टर सडाव कहते हैं कि मैं भी नहीं फेंक पा रहा हूँ. अगर ये आदमी पूरा होता यानी कंप्लीट अनकॉन्शियस होता कोई प्रॉब्लम, मगर ये इंजर्ड है और एज ए डॉक्टर उसकी फर्स्ट ड्यूटी बनती है कि वो पर्सन का इलाज कराए. तो इसीलिए उसने ही हेजिटेटेड, और साथ में ये भी कह रहे कि ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमीज एंड यू आल्सो कैन. अब फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जब दोनों ही नहीं फेंक पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि इसको घर पे लेके चलते हैं. एंड बट दैट वेरी मोमेंट सडाव ने कहा कि फिर वो जो सर्वेंट्स हैं डॉक्टर सडाव के घर पे एक्चुअली में 3 सर्वेंट्स थे. वन वाज यमी, शी लुक्ड आफ्टर द किड्स, एंड देन देयर वाज अ कुक एंड वन गार्डनर. ये जो गार्डनर है ये काफ़ी पुराना है. ही वॉज फ्रॉम द टाइम ऑफ डॉक्टर सडाउस फादर. वी मस्ट. तब डॉक्टर जब सडाव ने वो कहा कि हम क्या करें सर्वेंट्स का, तो हैना ने कहा कि हम लोग सर्वेंट्स को कह देंगे दैट वी मस्ट टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू. हमारा मकसद ठीक है कि हम इसको ठीक करके यानी इसका इलाज करके जब ये ठीक हो जाएगा हम इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे. सर्टनली सडाव एग्रीड. आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स. सडाव भी कह रहा कि हाँ इसके अलावा तो और कुछ सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग, जैसे ये ठीक हो जाएगा इसको पुलिस के हवाले कर देंगे. एंड suddenly I would not think of doing anything. Thus agreed together. They lifted the man. He was very light. और जब उन्होंने उठाया तो एकदम से बहुत ही हल्का सा, क्योंकि एक्चुअली वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर रहा काफ़ी दिनों से भूखा भी था, हाफ स्टार्व्ड. एक्चुअली जब प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं उनको इतना खाना भी नहीं दिया जाता है ठीक ठीक ताकि वो जी सकें और मरे भी नहीं. और जब इनको देखा तो उन्होंने उठाया तो ही वॉज हाफ स्टार्व्ड एंड वेरी लाइट लाइक ए फो, एकदम जैसे कि कोई मुर्गा मुर्गी होता है उसके जैसे. एंड सो हिज आर्म्स हैंगिंग दे कैरिड, और उसको दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस. दिस डोर ओपनड इनटू अ पैसेज. डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम. इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सडाउस फादर, एंड सिंस ही इज डीपली मैटेड that it was never been used. ये जहाँ ले गए वो डॉक्टर सडाव का फादर का जो कमरा था, और जब से वो मरे हैं गुजरे हैं तब से इस रूम को किसी ने यूज़ नहीं किया. और ये जो था रूम एकदम ट्रेडिशनल जापानीज स्टाइल में था. एक तो मैटेड फ्लोर था और यहाँ कोई कुर्सी नहीं थी, बिकॉज ही हैड नेवर एवर सेट ऑन द चेयर. वो बहुत ही ट्रेडिशनल पर्सन थे. एंड डॉक्टर एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज. हिज ओन सिटी थे. हैना वेंट टू द वॉल. हैना गई कबर्ड से एक कंबल निकालने ताकि वो नीचे बिछा दे ताकि मैट ख़राब नहीं हो.
एंड द क्विल्ट, और जैसे उसने वो क्विल्ट यानी रजाई उठाई तो उसको एकदम से हेजिटेट हुई, क्योंकि वो आदमी बहुत ही गंदा है। और ये जो क्विल्ट है ये एकदम प्योर वाइट सिल्क की है। यस ही इज़ बेटर। अब जैसे उसने कहा कि ही इज़ सो डर्टी, तब डॉक्टर सड़ाव कहते कि हाँ इफ़ यू विल फैच, अगर पानी ले आओगे तो मैं इसको साफ़ कर दूंगा। मगर तभी हैना कहते कि नहीं नहीं, आप यू विल नॉट बी वॉशिंग, आई कैन नॉट बियर टू यू टू टच हिम, वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ देयर, आई विल टेल यम्मी एंड शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम। और तब उसने ये कहा कि ठीक है, यम्मी जो यम्मी है शी इज़ अ मेड जो बच्चों के देखती है, तो हैना जाके उसको बता देगी एंड बाकी जो दो नौकर हैं उनको डॉक्टर सड़ाव बता देंगे। एंड दिस वाज डिसाइडेड कि ठीक है हाँ ऐसे कर लेते हैं। एंड तब डॉक्टर सड़ाव कंसिडर लेट इट बी सो, बोला कि ठीक है ऐसे करते हैं। मगर तभी सड़ाव ने ध्यान से उसको देखा और उसकी जो पल्स है उसको फील किया ताकि हार्ट बीट पता चल सके। और जैसे ही उन्होंने देखा इट वाज वेरी फेंट, और वो कह रहे कि लेट इट बी सो एंड बट ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड। और तब नाउ लुक एट दिस लाइन्स, दिस आर वेरी गुड लाइन्स। जस्ट उन्होंने कहा कि अगर ये इसको ऑपरेट नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। और फिर वही क्वेश्चन उनके मन में आया, द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे। एक्चुअली में अगर ठीक भी हो जाएगा, जब उसको पुलिस को हैंड ओवर करेंगे तब भी वो उसको मार देंगे, दे माइट हैंग हिम। एंड तो यहाँ पे क्वेश्चन ही ये है कि वो मरना तो है ही उसको। एंड हैना क्राइड आउट ऑफ फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ़ ही शुड लिव। तभी हैना ने भी कहा कि अगर ये मर रहा हो तो मरने देना, ज़्यादा सेव करने की नहीं कोशिश करना। एंड व्हाट इफ़ ही शुड डाई, सड़ाव रिप्लाइड, ही स्टूड गेजिंग डाउन एट द मोशनलेस मैन। और फिर अगर ये मर गया तो क्या होगा। एंड द मैन मस्ट हैव, तभी उनको एक और ख्याल आया कि ये जो मैन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वाइटलिटी टू बी, ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। अगर नॉर्मल पर्सन होता है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सिर्फ होता है कि फ़ौजियों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी वाइटलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। एंड और इसीलिए डॉक्टर सड़ाव भी सोच रहे थे कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वरना तो अभी कभी का मर चुका होता, क्योंकि इसके गोली भी लगी हुई है और गोली शायद अंदर ही है। एंड ये एक्चुअली में इसीलिए भी हो सकता है कि यंग ब्लड है, ही इज़ लेस देन 25 ईयर्स ओल्ड। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, बोला ऑपरेशन से मर जाएगा कि नहीं नहीं। यस, डॉक्टर सड़ाव ने कहा हाँ। हैना ने तो ये एकदम डाउटफुल था। सी मैंने पहले भी बताया कि डॉक्टर सड़ाव वाज ए मास्टर डॉक्टर ऑफ जापान, वो इतने अच्छे थे कि उनके हाथ से आज तक कोई नहीं मरा। एंड इनफैक्ट वो ही वॉज द वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर अवेलेबल इन जापान। तो वो जो थियरी थी कि भाई ऑपरेशन के दौरान मर जाएगा, तो हैना ने तो उसको तो पूरा खारिज कर दिया। When she did not answer, Sadao turned away. At any rate, something must be done with him, he said, and first he must be washed. He went quickly out of the room, and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone with the white man. He was the first she had seen since she left America, and now he seems to be having nothing to do with those who were known there. Here, he was हर एनिमी ए मेनान्स लिविंग। अब हमें डॉक्टर हैना को एट एनी मोमेंट समथिंग मस्ट बी डन। और फिर सड़ाव ने सोचा कि चलो जो है या तो मरे या जिए, कुछ तो करना ही है। एंड वो वहाँ से बाहर निकल गए। और जैसे ही वो बाहर निकले, हैना भी एकदम बाहर निकल गई, क्योंकि वो उस वाइट मैन के साथ अकेला उस कमरे में नहीं रहना चाहती थी। तो वो भी तुरंत बाहर आ गए। वो अब हाँ कभी रही थी वो अमेरिका में, डॉक्टरी कर रही थी, मगर आज की डेट में उसके लिए हर अमेरिकन उसका एनिमी है। एंड ये जो है ये भी एनिमी है और एक सिरदर्द है। मैनान से नहीं, सिरदर्द है, भले वो जिंदा है या मर जाए तो भी
एक सिरदर्दी है, कम विथ मी, आई विल पुट। और शी टर्न टू द नर्सरी, और फिर वो नर्सरी को तरफ मुड़ी, जो नर्सरी यानी जहाँ बच्चे का रूम्स हैं वहाँ पे, और बुलाई यम्मी को। और जैसे ही उसने आवाज़ दी यम्मी, तो जो बच्चे थे उन्होंने भी उसकी मम्मी की आवाज़ सुन ली। बट द चिल्ड्रंस हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट, और फिर वो अंदर गई क्योंकि बच्चे एकदम से चिल्लाने लगे। एंड फिर स्माइल की, थोड़ी सी देर उसका जो बेबी बॉय था उसके साथ खेली, वो लगभग 3 महीने का ही था। एंड बेबी सॉफ्ट ब्लैक, और यम्मी को कहा कि तुम बाहर आ जाओ, तो यम्मी कहती कि मैं इसका बिस्तर कर दूँ। एंड शी मेड द बेड फॉर द बेबी एंड he is ready. She went with Yummy into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms, and while Yummy spread the stripling, और फिर उसने उस बच्चे के बिस्तर किए और उसको सुला के वो दोनों बाहर आई। देन हैना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, और फिर वो यम्मी को लेके किचन में गई, जहाँ पे जो 2 सर्वेंट्स थे उनको डॉक्टर सड़ाओ बता चुके थे कि हमारे घर में एक अमेरिकन जो है सोल्जर वो है, वो इंजर्ड है, उसका हम इलाज करेंगे और फिर उसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। एंड जो जो गार्डनर था, ओल्ड गार्डनर, ही वॉज ए लिटिल सुपरस्टिशियस भी था। और जब उसने कि मास्टर, तो वो कहता है द मास्टर आउट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हैना, द वाइट मैन आउट टू डू डाई, फर्स्ट ही वॉज शॉट, then the sea caught him and wounded him with her rocks. If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. See the superstition क्या है कि एक पहले बंदूक की गोली ने उस आदमी की जान लेना चाहिए, वो नहीं ली। फिर जो सी है उसने उसका जो जख्म था बंदूक का, जो बुलेट वुंड था, उसको खोला और फिर उसको घायल किया। और यानी बंदूक और जो सी दोनों ही मारना चाहते थे और दोनों से ही वो बच गया था। और अगर मास्टर यानी डॉक्टर सड़ाऊ अगर उसको हील करते हैं, सही कर देते हैं, तो ये दोनों ही हमसे रिवेंज लेंगे। हैना ने उसको बड़े पोलाइटली आंसर दे दिया, आई विल टेल हिम व्हाट यू से, बट शी हरसेल्फ वॉज आल्सो फ्राइटन। वो उसको ये सुन के उसको भी डर लग रहा था, भले वो सुपरस्टिशियस नहीं थी, शी वॉज नॉट ए सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास, एज द ओल्ड मैन वॉज, कुड इट एवर बी वेल help an enemy. Nevertheless, she told Yummy to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. और उसने ये फाइनली उसको यम्मी को कहा कि तुम पानी की बाल्टी लेके उस जो वाइट मैन है नीचे, जो उसके डॉक्टर सड़ाओ के फादर का जो रूम है वहाँ पे आ जाओ। शी वेंट अहेड एंड स्लाइड बैक द पार्टीशन, सड़ाओ एंड Salavo was not yet there. Yummy following put down her wooden bucket. Then she went over the white man. When she saw him, और वो वुडन बकेट में वो पानी लेके गई, एक टॉवल भी लेके गई उसमें ताकि वो उसको स्पंज कर सके। और जैसे ही वो वहाँ पहुँची उसने वाइट मैन को देखा और कहने लगी, आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी वन नाउ। और उसने बड़े जिद्दीपने से कहा कि मैंने कभी भी एक वाइट मैन को ना तो वॉश किया है और ना ही अभी मैं इसको करूँगी। हैना को भी गुस्सा आ गया एंड वो चिल्लाई उस पर, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स। और फाइनली उसने कहा कि तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे मास्टर कहेंगे एंड नथिंग एल्स। देयर वॉज नो फियरस और सो फियरस। और मगर जब उसने हैना की तरफ देखा तो उसके जो चेहरे के जो हाव भाव थे वो इतने भयानक थे कि वो भी एक बार जिद्दी इतनी थी, वो जिद दिख रही थी उसके चेहरे पे कि नहीं मैं तो नहीं करूँगी। तो हैना ने भी लगा कि नहीं फालतू में, क्योंकि आफ्टर ऑल क्या है प्रॉब्लम क्या है, अगर ये नौकर जाके बाहर किसी को कहते हैं दे रिपोर्ट द समथिंग,
टू द पुलिस। तो पुलिस आके डॉक्टर हैना डॉक्टर सडव को पकड़ लेगी, उनके बच्चे छोटे हैं, एंड ऑल दिस सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज उनकी रेपुटेशन दाव पे लग जाएगी। एंड फिर उसने बड़े पोलाइटली यमी को समझाने की कोशिश की। वेरी वेल, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट we can turn him over to the as a prisoner. I will have nothing to do with it, Yummy said. I am a poor person and वो समझा रही है, मगर यमी क्या कह रही है कि मैं तो पुअर पर्सन हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना है वो आप जानो। बट देन और फिर फाइनली हैना ने कहा ठीक है, फिर तुम बाहर निकल जाओ, चली जाओ और अपना काम कर लो। एट दैट वंस यमी, और यमी तो जिद्दी तो थी, वो एकदम से वहाँ से बाहर निकल गई और हैना अकेले उस कमरे में थी। एक्चुअली में पहले भी हमने देखा कि हैना एकदम डर के बाहर आ गई थी डॉक्टर सडव के साथ, अब भी वो अकेली थी, मगर इस बार उसको एक्चुअली में गुस्से में थी। नॉट हर एंगर ऑफ यमी स्टबर्नेस नाउ सस्टेन्ड हर, मगर वो गुस्से में थी इसलिए वो वहीं पे रुक गई और गुस्से में उसको ये भान नहीं रहा कि ये वो अकेली वहाँ पे है। एंड स्टूपिड यमी शी मटर्ड, और अपने में बड़बड़ाती हुई कह रही कि स्टूपिड यमी, एंड है क्या ये, इज एनीथिंग बट अ मैन, ए वुंडेड हेल्पलेस मैन। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन स्पिरिटी शी बेंट इम्पल्सिवली एंड अनटाइड, और फिर उसने उसको वॉश करने के लिए नीचे झुकी, उसने उसके जो पहन रखे थे कपड़े उनको हटाया और जो टॉवल था शी टुक द टॉवल, और पहले उसकी जो चेस्ट था उसको साफ किया। एंड शी डिप्ड अ स्मॉल क्लीन टॉवल दैट यमी हैड केयरफुली। द मैन स्किन दो रफ विथ एक्सपोजर वाज ऑफ ए फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन, और जब उसने ध्यान दिया कि उसका जो स्किन है बहुत ही सॉफ्ट है एंड बहुत ही वाइट है, और ये जब बच्चा था तब तो शायद बहुत ही ज़्यादा गोरा होगा। एंड वाइल शी वॉज थिंकिंग दिस थॉट्स, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ ही वॉज वेयर वॉज द सडव, और तभी उसको ध्यान आया कि वो अकेली है और सडव कहाँ है। वो अपने आप में सोचे, नाउ हर एंगर वॉज एमिंग, यानी अब धीरे धीरे उसका गुस्सा भी ख़त्म हो रहा है। शी वॉज एंशियस अगेन एंड शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन अ रॉन्ग टॉवल। देन लीज द मैन बी चिल्ड, और फिर उसको एहसास हुआ कि ये एक्चुअली मैंने इसको वॉश तो कर दिया है और शायद ये इसको ठंड लग रही होगी। तो फाइनली उसने जो सिल्क की जो क्विल्ट निकाली थी वो उस पर ओढ़ा दी। एंड सडाओ फिर वो धीरे से बोली, और उसी मोमेंट पे जैसे ही ये बोल रही थी कि सडव, उसी मोमेंट पे डॉक्टर सडव भी एंटर कर ही रहे थे, शायद उन्होंने कहा हाथ उस डोर पे ही था। एंड इट ओपन, शी सॉ दैट, अब उसने देखा कि डॉक्टर सडव अपने सर्जन का जो इमरजेंसी बैग होता है और सर्जन का जो कोट होता है वो लेके पहन के वहाँ पे आ गए। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, यस ही सेड। ही टर्न्ड हिज बैक to her and unfolded the sterilized towel upon the floor of the लोकोमोना, यानी एक छोटे सी टेबल है उसके ऊपर उसने अपना स्टेरिलाइज टॉवल रखा और बाकी जो ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो सब। फेच टॉवल्स, he said. She went obediently but now anxious now to the linen shelves and took out the towels. There ought also to be old piece of matting so that the blood would not run to the fine floor covering. She went to the back of veranda. Actually गार्डनर क्या करता है, कुछ जो फालतू कपड़े होते हैं वो वहाँ पे रखता है, तो उसको लगा कि वो जाके वो जो कपड़े हैं वो ले आएगी ताकि जो ब्लड है वो यूज़ होके जब ये ऑपरेशन करेंगे तो कारपेट गंदी नहीं होगी। मगर kept strips of matting which to protect the delicate shrubs,
एक्चुअली वो शब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो वहाँ पे गार्डनर रखता है. बट व्हेन शी वेंट बैक इन द रूम शी थॉट दिस वाज यूजलेस. और जब तक वो कपड़े लेके आई वहाँ से, गंदे कपड़े, द ब्लड हैड ऑलरेडी सॉक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वुड एंड थ्रोन द मैट अंडर हिम. ओ द मैट. और फिर एकदम से उसको आश्चर्य हुआ कि ओ द मैट. यस इट इज़ रून, सडाउ रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर. सी वन डॉक्टर सडाउ का एक था कि जब वो ऑपरेशन करते थे वो बाकी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे. हेल्प मी टू टर्न हिम. और फिर उसने हैना को कमांड दिया कि इसको टर्न करने में मेरी मदद करो. शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड एंड ही बिगैन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली. यमी वुड नॉट वॉश हिम शी सेड. फिर उसने कहा कि यमी तो मना कर दिया था वॉश करने के लिए. तो सडाउ ने पूछा कि अच्छा तो फिर तुमने वॉश किया. यस. ही डिड नॉट सीम टू हियर हर बट शी वॉज यूज टू हिज अब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क. वो एकदम खो जाते थे अपने जो काम था उसमें. शी वंडर्ड फॉर अ moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long, as it was the work he did so excellently. और सी डॉक्टर सडाउ की एक ही आदत थी कि वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. लोग हैना भी सोच रही है कि ये कैसे हैं. एक्चुअली हैना ने कभी ऑपरेशन नहीं किया था बिकॉज डॉक्टरी पढ़ने के बाद उसकी शादी हो गई थी एंड शी हैड नेवर डन और सीन द ऑपरेशन. और इसीलिए उसका वो बस यही सोचे कि डॉक्टर सडाउ कैसे करते हैं, इनको कोई फ़र्क पड़ता है कि यह आदमी का बॉडी है क्या है. यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिया इफ़ ही नीड्स शी सेड. तभी डॉक्टर सडाउ ने कहा कि इसको एनेस्थीसिया देना पड़ेगा. एनेस्थीसिया एक्चुअली में बेहोश करने की जो दवा होती है. एक्चुअली इसका एनेस्थेटिक डॉक्टर्स होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में मरीज को एनेस्थीसिया देते हैं कि पर्टिकुलर इतने टाइम पीरियड के लिए वो बेहोश हो जाएगा. एंड डॉक्टर सडाउ ने हैना को भी कहा कि तुम्हें एनेस्थीसिया देना पड़ेगा. अगर जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम्हें एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, शी रिप्लाइड बट नेवर हैव. बोला कि जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर हैना ने तो कभी काम ही नहीं किया. सो आई बट नेवर हैव इट इज़ ईजी. तब उन्होंने एक्सप्लेन किया. He was taking out the packing now and the blood began to flow. और ये बात करते करते वो अपना काम भी कर रहे हैं, ऑपरेशन भी कर रहे हैं. उन्होंने पैकिंग निकाली. He peered into the wound with a bright surgeon's light fastened to his forehead. जैसे आप फोटो में देख सकते हो उनके यहाँ पे सर के ऊपर यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है. उन्होंने अंदर देखा कि कहाँ पे क्या है. He said, now I wonder how deep this rock wound is. If it is not too deep, it may be that I can get the bullet, but the bleeding is not superficial. He has lost much blood. और उसका काफ़ी खून, अगर ये जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है तो वो उसमें से आराम से बुलेट निकाल लेंगे, मगर जो ब्लीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है. एट दैट मोमेंट हैना चॉक्ड. और हैना एकदम से चौक हो गई. जैसे होता है ना कि ब्लड उसने देखा नहीं है. ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर. डोंट फेंट ही सेड शार्पली. ही डिड नॉट पुट डाउन द एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट. इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई. फिर उन्होंने हैना को कहा कि तुम बेहोश मत हो जाना और मैं रुक नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी रुक गया तो ये पर्सन श्योरली मर जाएगा. He clapped her hands to her mouth. और हैना ने भी जैसे उल्टी जैसा हो रहा था तो अपने मुंह पे उसने हाथ रख लिया और फिर बाहर की तरफ भागी. और बाहर जब गई गार्डन के वहाँ, तो डॉक्टर सडाउ सुन रहे थे कि वो वहाँ पे उल्टियाँ कर रही है. तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टोमक. शी थॉट ही हैड फॉरगॉटन ऑफ कोर्स दैट शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन. एक्चुअली मैं कभी ऑपरेशन देखा नहीं, ये फर्स्ट टाइम है वो. बट हर डिस्ट्रेस इन इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हर इम्पेशेंट. अब डॉक्टर सडाउ भी चाहते थे कि वो जाके अपनी वाइफ को कंसोल करें. उल्टी हो रही तो उसका पीठ थपथपाएं और उसको कंसोल करें, मगर वो नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे इस पेशेंट को छोड़ के नहीं जा सकते हैं.
The man who laid like a dead under his knife. This man, there is no reason under heaven why he should live. Unconsciously, that thought made him ruthless. और फिर उनके दिमाग में एक थॉट आई कि ये आदमी क्यों जिंदा रहना चाहिए, कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये आज बच भी गया तो कल मर जाएगा. एंड अनकॉन्शियसली, और जैसे ही ये थॉट उनके दिमाग में आई वो थोड़े से रूथलेस हो गए, यानी डेलिकेटली वो काम नहीं कर रहे थे. ही प्रोसीड स्विफ्टली टू हिज ड्रीम्स एंड द मैन मोर्न बट सडाउ paid no heed except to mutter, "Go on," he said. "Go on if you like. I am not going this for my own pleasure. In fact, I know I don't know why I am doing this." और फिर जैसे उन्होंने और कुरेदना चालू किया जख्म को, वो आदमी एकदम से कराहने लगा. दैट इज़ द मेकिंग ए लिटिल साउंड, ग्रोनिंग. एंड जैसे ही वो, तो वो कहते कि ठीक है, अगर कराना कराओ, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं जानता हूँ मैं ये क्यों कर रहा हूँ. वाई आई एम डूइंग इट. द डोर ओपन एंड देयर वॉज हैना. वेयर इज़ द एनेस्थेटिक. और फिर जब वो बाहर से आई उल्टी उल्टी करके, फिर एक नया जोश था. एंड शी टोल्ड कि एनेस्थेटिक कहाँ पे है. शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस. सडव मोशन. और फिर सडव ने अपने चिन्ह से इशारा कर दिया. It is as well that you came back. This fellow is being to stir. वो कहते हैं कि अच्छा हो गया तुम आ गए, क्योंकि ये आदमी हिलने लग गया अब. She had the bottle and some cotton in her hand. But how shall I do it? Simply saturate the cotton and hold it near his nostrils. Sadav replied without delaying a more moment. और उन्होंने उसको एनेस्थीसिया कैसे देना है ये बताया कि जो बोतल है क्लोरोफॉर्म की, उसके ऊपर रुई रखो और रुई को क्लोरोफॉर्म में भिगो दो, और फिर उस रुई को उसके नाक के नॉस्ट्रल्स के पास में लाके थोड़ा सा दूर, एकदम टच नहीं करना, थोड़े से दूर लाके उसको सूंघाओ ताकि वो बेहोश हो जाएगा. एंड व्हेन ही ब्रीज बैडली मूव इट अवे. जैसे उसकी सांसें फूलने लगे तो तुम उसको दूर कर लो. इस तरीके से वो बेहोश हो जाएगा, और जब वो बेहोश होगा तो ही कैन ऑपरेट. एंड क्योंकि वो हिलेगा नहीं फिर ज़्यादा, तो दिस टिल नाउ दिस स्टोरी इज दैट इज. तो अब वो डॉक्टर सडव उसका इलाज करने लग गए हैं. ओके, दैट्स ऑल.